So, hi guys. Today we'll be learning the chapter percentages. We'll start from the basic and we'll try to catch that up to a intermediate and a higher level. So, starting with the chapter. Percentages. It is a very इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ अर्थमेटिक का बेस है बिल्कुल. सो परसेंटेजेस से आप क्या समझते हो, किसी भी चीज का क्या पार्ट होना चाहिए? सो विल स्टार्ट. सो सबसे पहले टॉक अबाउट वेरी बेसिक क्वेश्चन. इफ आई आस्क यू व्हाट इज 20% ऑफ 100, so I believe maximum of the guys will be able to solve it by doing this, like 20 upon 100 into 100, that is 20%. so now you know कि हमें अगर किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो, सो व्हाट वी डू, हम उसका परसेंट लेते हैं और उसको उस पार्ट से डिवाइड कर देते हैं 100 से, फिर मल्टीप्लाई बाय दैट पार्ट. ठीक है. नाउ बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज 14.28% ऑफ 42, so you guys might be doing like this: 14.28 upon 100 into 42. This seems to be a crazy calculation. It will take a lot of time. So इसको बचाने के लिए now I'll be telling you a new concept, that is, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, complicated. ठीक है ना? So इसको बचाने के लिए I'll tell you another concept, that is percentage as fractions. Consider this a full circle. Now if I say this is 1, then according to percentage it becomes 100%. If I split it into half, that is 1 by 2, it becomes 50%. Now if I split it into 3 parts, if I split it into like this 3 parts, so 1 by 3, this comes out to be 33.33%. If I split this into 4 parts, this is 25%. Same doing that in 5 parts, that comes out to be 20%. In 6 parts, that is 16.67%. Okay, I'll write it more clearly. 16.67%. Now I'm erasing this to write the more fraction values. Kindly check this out. 1 by 7, that is 14.28%, which was your earlier question. 1 by 8, 12.5%. 1 by 9, 11.11%. I am erasing this one. 1 by 10 is 10%. 1 by 11 is 9.09%. 1 by 12 is 8.33%. 1 by 13 is 7.7%. Kindly write down in the comments what is the value of 1 by 14. Okay, so guys, आपको 1 by 14 and 1 by 15 तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए. ठीक है ना? So this was the all value. एक बारी मैं लिख देता हूँ, if you want to write it down, that is 7.7%. ठीक है ना? Now अब इससे क्या फायदा हुआ, I'll tell you. So the question which we were solving, that was 14.28% of 42. That means you know the value of 14.28%, that is 1 by 7 into 42. It comes out to be 6. This comes to be a like 5 to 6 second question. But if you go by the basic approach, it will take a lot of time of you, as I discussed in the earlier also. Okay, now coming to the very next concept, that is percentage increase or decrease. Percentage increase or decrease. If I say Aman scored 120 marks in his first semester, I am writing this like this, Aman 1. Now if Aman scores 150 marks in his second semester, so first of all guys, in this case the marks are increased, so the question is of percentage increase. So what is the percentage increase in the marks of Aman? This is the question which we are having right now. So what is that? So there is a very simple trick of that. आप इन दोनों का डिफरेंस लो, दैट इज 30. ठीक है ना? इन दोनों का डिफरेंस है 30. नाउ यू हैव टू कंपेयर द मार्क्स ऑफ अमन जो उनके प्रीवियसली आए थे, दैट इज 120.
So on solving this, this comes out to be 1 by 4. You know the value of 1 by 4, that is 25%. As simple as that. As simple as that. It's very basic concept. Now, another concept is, that is, this is very important. Percentage less than slash greater than. If I say the marks of Sarthak is 150 and the marks of Mudit, okay, let's consider Soumya, okay, and the marks of Soumya are 120. So the question is, by what percent Sarthak scores more than Soumya? Okay, this is the question. The marks of Sarthak are the marks of Sarthak is 150. The marks of Soumya is 120. By what percent Sarthak scores more than Soumya? ठीक है. So we'll solve this question. देखो सिंपल सा वही कंसेप्ट लगाएंगे. व्हाट इज द डिफरेंस इन द मार्क्स? सिंपल सी बात है, सार्थक के मार्क्स सौम्य से ज्यादा हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द मार्क्स? 30. द क्वेश्चन वाज by what percent Sarthak scores more than Soumya. So we have to compare by Soumya. The marks of Soumya are 120. It comes out to be 1 by 4. That is 25%. As simple as that. As simple as that. Now I can twist the question else also. Like, by what percent Soumya scores less than Sarthak? So you guys might feel कि अगर सार्थक के सौम्य से 25% मार्क्स ज्यादा हैं तो सौम्य के सार्थक से 25% कम होंगे. नहीं, दैट इज नॉट द केस, बिकॉज हम जिस चीज से कंपेयर कर रहे हैं दैट विल डेफिनेटली चेंज. सो नाउ माय क्वेश्चन इज, बाय व्हाट परसेंट सौम्य scores less than Sarthak? So the number of marks, that is 30. Now we have to compare with the Sarthak. So 30 upon 150, that gives me 1 by 5, that is 20%. Getting my point? This. अब इसमें हम लोग थोड़ा सा वी हैव लर्नड अबाउट फ्रैक्शन वैल्यूज, हम उसका यूज करेंगे. सपोज ए स्कोर्स 9.09% लेस देन बी, देन बाय what percent B scores more than A? A scores 9.09% less than B, then by what percent B scores more than A? Okay, 9.09% you know that is 1 by 11. अब इसका क्या शॉर्ट ट्रिक है? आई एम टेलिंग यू द शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना. 1 by 11 से क्या हुआ है? B का मार्क्स डिक्रीज हुआ है. सो फ्रैक्शन में डिक्रीज होता है 1 पे, दैट इज 100%. तो आई व्हाट आई डू 1 minus 1 by 11, that comes out to be 10 by 11. अब जिसके मार्क्स कम है दैट इज A, जिसके मार्क्स ज्यादा दैट इज B. इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं. वी कैन कंपेयर द रेशियो ऑफ द मार्क्स. सो आई कैन अज्यूम कि अगर A के 10 मार्क्स आए देन B के 11 मार्क्स आए. ओके, सो इट इज वेरी इजी नाउ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ टू? दैट इज 1 mark, and I have to compare B with A. I have to compare with A. So the marks of A are 10 into 100, that is 10%. As simple as that. If you would have done this by the very basic method, so it would have taken a lot of time of you, but this seems to be very easy by this method. ठीक. अब देखिए इससे जो एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन विल कम लाइक दिस वे, ठीक है ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ राइस या प्राइस ऑफ शुगर ले लीजिए. प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 33.33%. Then by what percent family must reduce its consumption in order to
मेंटेन द एक्सपेंडिचर। सी ये कैट का प्रीवियस ईयर है, काफी ज्यादा बारी 2010 से पहले काफी ज्यादा क्वेश्चन आता था, ठीक है ना। द क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 33.3%, देन बाय व्हाट परसेंट फैमिली मस्ट रिड्यूस इट्स कंजम्पशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब भाई अगर आप पहले 100 रुपए देते हो फॉर एग्जाम्पल किसी भी दुकान वाले को चीनी के लिए, तो अगर आपको वो एक्स के जी चीनी देता है, तो अब अगर प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हो गया तो इफ यू गिव हिम 100 रुपए तो डेफिनेटली वो आपको एक कम अमाउंट ऑफ चीनी देगा। सो ये सेम क्वेश्चन वही कन्वर्ट हो गया कि अगर आपका, ठीक है, अगर आपको कोई चीज 33.33% से बढ़ जाता है तो आप कितना कम खरीद पाओगे, मतलब दूसरी चीज कितनी रिड्यूस हो जाएगी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, आई एम राइटिंग इट द सॉल्यूशन, ठीक है ना। 33.33% कितना होता है गाइस, दैट इज 1/3। 1/3 से इंक्रीज आ रहा है, सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई विल डू 1 + 1/3 बिकॉज इट इज इंक्रीज, दैट इज 4/3। नाउ दिस इज द न्यू प्राइस, आई कैन टेक दिस इज द ओल्ड प्राइस, ओल्ड सॉरी, ठीक है ना, दिस इज द ओल्ड प्राइस। What is the difference between these two? 1, and I have to compare with the new price 1/4. That you know the value 1/4 as I told you earlier, that is 25%. So 25% उसको कम चीनी मिलेगी। अगर कहने का मतलब अगर उसको पहले 1 किलो मिलती थी, now he will be getting 750 grams only, ठीक है। एक छोटे छोटे कंसेप्ट और है परसेंटेजेस में, मैं आपको वो और बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि सक्सेसिव परसेंटेजेस, जैसे सक्सेसिव, यार ये ना एक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, उसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेटिव है चीज, सक्सेसिव डिस्काउंट वाले केस में, सक्सेसिव परसेंटेजेस, ठीक है ना, सक्सेसिव परसेंटेजेस। व्हाट इफ आई आस्क यू 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ 500, what is 20% off, 30% off, 50% off 500? So some guys might do like this, they'll add 20 plus 30 plus 50, that is 100% of 500. This is wrong, this is wrong. Some of you guys might think this is right, no, this is wrong. अब इसमें करना क्या है, सी परसेंटेजेस वर्क्स इन लाइक इस तरह से है, तो दे वर्क्स इन मल्टीप्लिकेटिव, ये आपके मल्टीप्लीकेशन में चलती है। तो 20% आई कैन राइट 20/100 इंटू 30/100 इंटू 500, ठीक है ना। 0 से 2 0 कटे। अच्छा आई हैव अनदर थिंग ऑल्सो, 20% और अच्छा 50%, सॉरी यहाँ पे मैंने 50% और ऐड कर दिया, मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, ठीक है ना। 0 से 0 कटे, या 2 0 से ये 0 कटे, ठीक है ना। 1 0 से ये 0 कट गया, 5 2 जा 10, 2 से 2 घटा, सो द आंसर इज 15. दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब तक हम लोगों ने एक बेसिक परसेंटेज का पूरा कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने एक ओवरऑल समझ लिया है कि सबसे पहले हाउ टू लाइक टेक या कंसिडर परसेंटेजेस एज फ्रैक्शंस। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ाया परसेंटेज लेस देन ग्रेटर देन। उसके बाद फिर मैंने आपको, उससे पहले मैंने आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पढ़ाया था। फिर मैंने आपको परसेंटेज लेस देन या ग्रेटर देन में कैट लेवल कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने आपको थोड़ा सा समझाया क्या होता है। फिर लास्ट में मैंने थोड़ा सा सक्सेसिव परसेंटेजेस की बात की गई है। इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट्स काइंडली कमेंट अस डाउन रिगार्डिंग द परसेंटेजेस, या आपको ऐसा लगता है कि कोई और टॉपिक, इसमें कोई टॉपिक मिसिंग है, वो चीजें हम और इस चैप्टर में कवर कर सकते थे। सो इन पार्ट 2 इफ वी टेक दैट, सो विल डेफिनेटली मेक अ पार्ट 2 अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आपके कमेंट्स के हिसाब से। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।